Hello dear student, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic Nagpur. I welcome all for the video series of linear integrated circuits having a subject code 22423. Today we are going to start our new chapter, that is chapter 3, linear applications of operational amplifier, and today's topic of discussion is signal conditioning and signal processing. The course outcome for this course as troubleshoot various applications of op-amp for the given specification. जो भी specifications आपको दिए जाएंगे उस हिसाब से आप लोगों को जो भी linear applications आप develop करोगे उसको troubleshoot करना है by using this chapter. तो आप लोग इस chapter में पढ़ने वाले हो how to apply the conditions or specification, and as per the specification how to develop the linear applications of op-amp. The CO and the PO mapping. From very first lecture we are developing a CO-PO mapping table for each and every COs. Here this table shows the CO-PO mapping for the CO3 along with the number of POs. There are total 7 number of POs. आप लोगों को जैसे कि CO3 पता है कि हाउ टू ट्रबल शूट वेरियस एप्लीकेशन, उसी हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे CO3 को PO1, PO2, PO3 एंड PO4 के साथ एट द हाईएस्ट लेवल मैप किया है. सभी को पता है कि PO1 इट इज नथिंग बट द बेसिक नॉलेज एंड द डिसिप्लिन नॉलेज, जो कि आप लोगों को काम में आने वाला है वाइल डेवलपिंग द एप्लीकेशन. उसके बाद में प्रॉब्लम एनालिसिस. आप लोग जो भी माइक्रो प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट को बनाने वाले हो उसमें आप लोगों को डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके उसको डेवलप करना है. देन आफ्टर दैट दिस एप्लीकेशंस वी आर गोइंग टू परफॉर्म बाय practically also, so the PO3 is also useful. उसके बाद में जो भी आप लोग applications use करने वाले हो that will be applicable for the environment, and that's why this PO4 also mapped here. उसके साथ साथ PO6 and PO7 are also mapped, that is the you are going to work by the individual as well as in the team, and these applications are nothing but the lifetime achievement for this chapter. So this is the CO and PO mapping for the CO3. Then the learning outcomes. After the completion of this course or topic, students will be able to, it means you will be able to, first of all you will be able to describe the need of signal conditioning and the signal processing. आप लोगों को पता चल जाएगा कि signal conditioning क्या होता है and the signal processing क्या होता है, और how to describe that particular signal processing and the signal conditioning ये आप कर सकोगे. Then उसके बाद में व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशन बाय op-amp को यूज करके कौन से एप्लीकेशन सिग्नल कंडीशनिंग एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में दिए जा रहे हैं, ये भी आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो. इन द लास्ट लेक्चर वी आर स्टडीड अबाउट इन द लास्ट यूनिट, क्योंकि यहाँ पे अपन अपना नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, तो लास्ट यूनिट में अपन ने क्या पढ़ा था. तो लास्ट यूनिट दैट इज नथिंग बट द एप्लीकेशंस ऑफ op-amp. उसमें पढ़ा था अपन ने कि डिफरेंट एप्लीकेशंस op-amp लाइक एडर, सबट्रैक्टर, इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर along with their circuit diagram and the derivations for the output voltage. ये अपन ने लास्ट लेक्चर में लास्ट यूनिट में पढ़ा था. देन उसके बाद में ओपन लूप एंड क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों ने क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन के इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, their circuit diagram and their output voltage equation for that particular diagram, ये भी अपन ने पढ़ा था. उसके बाद में वोल्टेज फॉलोअर सर्किट को अपन ने देखा था, जिसको अपन यूनिटी गेन एम्पलीफायर और बफर एम्पलीफायर भी बोलते हैं. ये सब अपन ने लास्ट यूनिट में पढ़ा था. अभी यहाँ पे लास्ट यूनिट में अपन ने नॉर्मल एप्लीकेशंस ऑफ op-amp देखे थे. यहाँ पे आप लोगों को लीनियर एप्लीकेशंस ऑफ op-amp देखने, लीनियर के साथ साथ आप लोग कुछ एप्लीकेशन नॉन लीनियर वे में भी देखने वाले हो. तो लेट्स स्टार्ट विद अवर न्यू यूनिट, दैट इज द लीनियर एप्लीकेशंस ऑफ op-amp. और फर्स्ट टॉपिक इज signal conditioning and the signal processing. Now, before going for the signal conditioning and the signal processing, we must have to know the meaning of these two words, conditioning and the processing. Everybody is familiar with the word signal. Signal सभी को पता है कि what kind of signal we are giving the
input and what kind of output we will get at the output side. ये आप लोगों को पता है. तो देखते हैं क्या होता है सिग्नल कंडीशनिंग एंड द सिग्नल प्रोसेसिंग. जैसे कि आप लोगों ने सभी ने मेजरमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम देखा है. फिजिकल पैरामीटर्स कौन से होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, उसके बाद में प्रेशर हो गया, लेवल हो गया, वाइब्रेशन हो गया, ऐसे डिफरेंट डिवाइसेस के अपन मेजरमेंट करते हैं. तो ये जो पैरामीटर्स है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर करते हैं अपन. कौन से टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, लेवल हो गया, प्रेशर हो गया, ये अपन डिवाइसेस के यूज करते हैं. एंड after some time these parameters are getting converted into equivalent signal using transducer. क्या होता है यूजिंग ट्रांसड्यूसर. आप लोगों ने जो भी ये पैरामीटर्स दिए है उसको अपन कन्वर्ट करने वाले हैं बाय यूजिंग ट्रांसड्यूसर. अभी ट्रांसड्यूसर का यूज आप लोगों को अपन ने पीसी में देखा था कि ट्रांसड्यूसर का यूज क्या होता है. ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस था जो आप लोगों के सिग्नल को कन्वर्ट करता था एक वन ऑफ द पर्टिकुलर क्वांटिटी में. ठीक है, तो ये ट्रांसड्यूसर इट इज वन ऑफ द सेंसर जो कि सबके सिग्नल को भी सेंस करता है. देन दिस ऑब्टेन्ड सिग्नल मतलब जो भी आप लोगों के इक्विवेलेंट सिग्नल यूजिंग ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट होके, कैसे वीक सिग्नल को आप लोगों ने कन्वर्ट किया. तो ये जो वीक सिग्नल है वो एम्पलीट्यूड में वीक होते हैं और कभी कभी उस सिग्नल में नॉइज भी होता है. बराबर है. तो ये जो ऑब्टेन सिग्नल है वो एम्पलीट्यूड में कम होने के कारण और नॉइज होने के कारण जो रेगुलर सिग्नल आपने इनपुट साइड में दिए थे वही रेगुलर सिग्नल आपको आउटपुट साइड में नहीं मिलते. तो इसको क्या करना है, व्हाइल बिफोर ट्रांसमिटिंग दिस सिग्नल आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट प्रोसीजर्स को यूज करते हैं, जैसे कि एम्पलीफिकेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, मिक्सिंग हो गया सिग्नल का. ये सब चीजें अपन परफॉर्म करते हैं, प्रोसेस करते हैं. तो इसी प्रोसीजर को अपन बोलेंगे क्या, सिग्नल प्रोसेसिंग. इसी को क्या बोलेंगे अपन, सिग्नल प्रोसेसिंग. देखो सबसे पहले कोई भी पैरामीटर्स आप लोग डिवाइसेस के अगर मेजर कर रहे हो तो जो सिग्नल है आप लोगों को मिलने वाले दैट सिग्नल बिकम्स वीक और जिसमें नॉइज ज्यादा टाइम में अवेलेबल है. उसके बाद में आप लोगों को सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना है, जैसे कि एम्पलीफिकेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, मिक्सिंग. तो इसी प्रोसीजर को अपन क्या बोलेंगे, सिग्नल प्रोसेसिंग. नाउ लेट्स गो फॉर द सिग्नल कंडीशनिंग. Now the process of manipulating sensor output. सबसे पहले कि आप लोग सेंसर से आए हुए आउटपुट को मैनिपुलेट करते हो फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. मतलब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों ने प्रोसेस किया, आप लोगों को सिग्नल मिला. अभी सभी के सभी सिग्नल्स तो अपन आउटपुट के साइड में नहीं भेज सकते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मैनिपुलेट दैट पर्टिकुलर आउटपुट और उसके बाद में उसके ऊपर अपन प्रोसेसिंग करेंगे एंड दैट प्रोसेसिंग इट इज नथिंग बट योर सिग्नल कंडीशनिंग, जिसको अपन क्या बोलेंगे, सिग्नल कंडीशनिंग. द सिग्नल प्रोसेसिंग डील्स विद द ऑपरेशन. सिग्नल प्रोसेसिंग डील्स विद द ऑपरेशन. देखो यहाँ पे दिया है द सिग्नल प्रोसेसिंग डील्स विद द ऑपरेशन और द एनालिसिस. जैसे कि अपन सिग्नल का एनालिसिस करते हैं उसके साथ साथ ऑपरेशन के साथ डील करते हैं ऑफ एनालॉग एज वेल एज द डिजिटल सिग्नल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ signal processing or the signal conditioning. So this is all about the signal conditioning and the signal processing. Before going for the linear application, you must have to know the what is signal, what are the different processing and the conditioning applying for the signal. ठीक है, then अभी इतना तो अपन ने पढ़ लिया कि कंडीशनिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है. तो बट इसका जरूरत क्या है, नीड क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस सिग्नल कंडीशनिंग. तो सिग्नल कंडीशनिंग एंड द प्रोसेसिंग ऑफ सिग्नल इज रिक्वायर्ड टू अचीव द फॉलोइंग पर्पजेस. जैसे कि एम्पलीफिकेशन की प्रोसेस करना है तो आप लोगों को सिग्नल कंडीशनिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग पता होना चाहिए. फिल्ट्रेशन करना है सिग्नल का तो भी आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए. देन यू आर गोइंग फॉर द आइसोलेशन ऑल्सो. देन मल्टीप्लेक्सिंग करना है, जैसे कि अपन ने जैसे तुम लोग डिजिटल टेक्निक्स में मल्टीप्लेक्सर वगैरह पढ़ रहे हो तो उसी चीज को उसके जैसे अगर कोई एप्लीकेशन अपन यूज करें तो एट दैट टाइम यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द मल्टीप्लेक्सिंग. देन
यहाँ पे आप लोगों को वोल्टेज टू करंट, करंट टू वोल्टेज का कन्वर्जन भी पढ़ना है, जिसके लिए भी आप लोगों को ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देन वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेशन, लॉग एंड एंटी लॉग ऑपरेशन, जैसे कि लॉगरिथमिक एम्पलीफायर देखेंगे अपन, एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर देखेंगे, उसके लिए उसके ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए आप लोगों को सिंगल सिग्नल कंडीशनिंग एंड सिग्नल प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहने वाली है। देन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया लास्ट यूनिट में अपन ने एडर, सब्ट्रैक्टर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएटर, ये सारी की सारी चीजें पढ़ी थी। तो उस टाइम भी अपन ने इनपुट साइड में कुछ सिग्नल्स दिए थे, उसको आप लोगों ने परफॉर्म करके उसके ऊपर प्रोसेस करके एंड आफ्टर दैट आउटपुट साइड में आप लोगों को 180 डिग्री फेज शिफ्ट का सिग्नल मिल रहा है या फिर 0 डिग्री फेज शिफ्ट का सिग्नल मिल रहा है या फिर नो फेज शिफ्ट का सिग्नल मिल रहा है, तो ये भी आप लोगों ने वहां पे पढ़े थे। तो उसी एप्लीकेशंस में अपन ने एडिशन भी किया था डिफरेंट वोल्टेजेस का, सब्ट्रैक्शन भी किया था, इंटीग्रेट भी किया था सिग्नल को और डिफरेंशिएट भी किया था। उसके बाद में इन दिस चैप्टर वी आर आल्सो गोइंग फॉर द एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। जैसे कि एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटली में कैसे कन्वर्ट करना है और डिजिटल अगर सिग्नल है उसको एनालॉग में कैसे कन्वर्ट करता है यूजिंग ऑप एम्प, ये भी अपन पढ़ेंगे। इसीलिए और ये सब परफॉर्मेंस करने के लिए और एप्लीकेशंस को डिराइव करने के लिए यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द सिग्नल कंडीशनिंग एंड द सिग्नल प्रोसेसिंग। Then what are the different applications और कौन से applications ये प्रोसीजर से जाते हैं, तो इसको भी देखेंगे अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। अपन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर को पढ़ेंगे यूजिंग 2 ऑप एम्प एंड 3 ऑप एम्प। देन वी विल गो फॉर द सैंपल एंड होल्ड सर्किट, V2I I2V converter, log and anti-log amplifier, zero crossing detector, comparator, window detector, Schmitt trigger, पिक डिटेक्टर, ऐसे सारे एप्लीकेशंस को अपन पढ़ेंगे। सो दिस लेक्चर समराइजेस विद क्या क्या पढ़ा अपन ने। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड कंसेप्ट ऑफ सिग्नल कंडीशनिंग एंड द सिग्नल प्रोसेसिंग। उसके बाद में व्हाट इज द नीड ऑफ सिग्नल कंडीशनिंग एंड द सिग्नल प्रोसेसिंग, ये भी अपन ने पढ़ा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर वेरी केयरफुली। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट instrumentation amplifier using 2 op amp. Thank you.